Okay. So this is the Kolb's reaction. Write a note on Kolb's reaction or Kolbe's reaction. Phenol react with sodium hydroxide to give sodium phenoxide. We know that phenol is acidic in nature, so it is reacting with NaOH. We will get sodium phenoxide. Okay. Now sodium phenoxide is further treated with carbon dioxide, so that we are getting sodium salicylate. Sodium salicylate, which on hydrolysis gives you salicylic acid. This reaction is an electrophilic substitution reaction between phenoxide ion and carbon dioxide. Okay, this is one of the methods of preparations of salicylic acid. ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ. Everybody has done this part? हेलो, चलो अभी इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होता है. Step 1 is basically step 1 बोलना. Okay, so phenol react with alkalis OH minus, so that we have now phenoxide ion. याद रखना, phenoxide ion is more stable than phenol. Plus H2O. Step 2, generation of carbocation. So this is the carbon dioxide. Okay, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करेगा किसके ऊपर? फिनॉक्साइड आयन के ऊपर. नेगेटिव चार्ज, राइट. तो देखो ये आ गया नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, सो दैट ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इधर होगा. बट बिफोर दैट ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिएक्ट करता है ये पहले समझ लो. इन एसिडिक मीडियम H प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड OH, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव. सो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इधर गए तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना. अंडरस्टूड. तो इसलिए स्टेप 3 में this carbon dioxide, where the carbon is in an electrophilic form, attack on electron rich center phenol, ऐसे ये अटैक करेगा, so that C double bond OH, ये प्लस है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O. सो देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ने ले लिया, सो दैट ये बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज आया जो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सो दैट वी हैव अ स्ट्रक्चर नाउ. क्या रहेगा स्ट्रक्चर? यहाँ पे होगा O माइनस, राइट. Then we have a double bond here, and here we have a positive charge, which can be stabilized by resonance, right? यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा OH. Now this proton, मतलब ये देखो, ये यहाँ पे आ गया ऐसे, right? So that the structure is like this way. मतलब ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन ये ले लेते हैं एसिड ना, और ये बेस है.
so that there is a formation of a structure like this way. यहाँ पे ये आ गया OH, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन में लिख रहा हूँ, then C double bond OH, O minus, right? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये बॉन्ड जैसा वैसे, जैसे मैं एरो कर रहा हूँ वैसे एरो तुम लोग भी करना. Now this bond shifts over here, so H plus निकल गया. Okay, मतलब next step में, तो what will be the structure? The structure is like this way. यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो माइनस H प्लस लिख रहा हूँ. देखो यहाँ पे मैंने H प्लस ऐड किया था, जो वापस मिल गया वो OH, and this is what COO minus. तो इसको मैं हाइड्रोलाइज करूंगा H3O plus, okay, minus H2O, and we are getting what will be the structure? यहाँ पे आएगा OH और ये हो गया COOH. This is nothing but salicylic acid. हाँ, यहाँ पे because of proton carbon becomes electrophilic, electron deficient. जो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, पैरा पे भी सेम मैकेनिज्म, सो दैट ये आगे जाके ऐसे बनते जाएगा और बन गया अपना सैलिसिलिक एसिड. राइट डाउन दिस पार्ट. Yes, Mansi. I'll explain you again. पुन्हा लिहू का? See, what is happening? I'll write it again. Okay, ये लिख रहे हैं सब लोगों ने, एक बार मैं वापस बता रहा हूँ ये कैसे होगा मेथड.
फिनॉक्साइड आयन जो बना, here we have a O minus phenoxide ion. It is further attacked by this protonated part. This is positively charged. मतलब ये डेल्टा प्लस हो जाएगा, पर ये प्लस है अभी, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, तो ये ऑक्सीजन का चार्ज न्यूट्रल हो गया. Therefore now carbon carries positive charge. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से मतलब आइदर ऑर्थो और पैरा. क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग. So this negative charge attack on this carbon atom, so that we have a structure like this way. ये structure बनेगा ऐसे. This is O minus, okay, and we have a C. So this becomes single bond OH and double bond O. Now here we have a positive charge. Remember that there is a hydrogen here also. So I am writing that hydrogen as it is. बाकी pi bond जैसे वैसे के वैसे रहेंगे. Now ये है बेस, ये है एसिड, तो उसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होगा. यहाँ से H plus ये लेगा. Therefore the structure is now here we have a OH and here we have a COO minus. Okay, और ये H है यहाँ पे. This is a plus charge, right? Now second step में मतलब यहाँ से अभी ये H plus चला गया, so that this pi bond comes over here. This is in a stabilized by resonance. So we have a structure like this way. यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आ गया COO minus, और यहाँ पे आ गया pi bond, न्यू pi bond, ये ओल्ड है जैसे के जैसे. So ये माइनस H plus क्यों गया? फर्स्ट स्टेप में H plus है जो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज किया. लास्ट स्टेप पे मुझे, so it is a acid catalyzed reaction. Now once you get a salt, ये है salt, salt of salicylic acid, salt of salicylic acid. This has to be hydrolyzed, acid hydrolysis. तो acid hydrolysis करेंगे तो क्या होगा? We are getting H plus देगा ना वो. We are getting OH and what? COOH. This is salicylic acid. Followed, Mansi? Yes. Still anybody having any doubt? Next reaction देखते हैं. Next reaction is Riemer-Tiemann reaction और Riemer-Tiemann reaction. देखो क्या reaction है. Treatment of phenol with chloroform in presence of aqueous sodium hydroxide at 340 Kelvin, followed by hydrolysis of resulting product gives you orthohydroxybenzaldehyde or salicylaldehyde. It's called as Riemer-Tiemann reaction. Okay. In this reaction, an aldehyde group is introduced in a benzene ring at ortho position. The intermediate benzene substituted benzyl chloride is hydrolyzed in presence of alkali to produce salicylaldehyde. ये देखो क्लोरोफॉर्म, इसका मैकेनिज्म भी मैं तुम लोग को बता रहा हूँ. ये क्लोरोफॉर्म ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, so that we are getting CH-Cl2. Now this CH-Cl2 is further hydrolyzed to give you what? Aldehyde. Okay. In this reaction, orthoisomer is the major product because यहाँ पे देखो intramolecular hydrogen bonding possible है, which can be separated from para-isomer by steam distillation. Is that clear? Please write down this. Just put the heading. ये दोनों भी reaction important है.
Riemer-Tiemann reaction. चलो हो गया सबका? हेलो, Yes, sir, done. कौन है एब्सेंट आज? संदेश आला इसका? Yes, sir. कुलकर्णी गायब. ओके, ठीक है. So let us understand now the mechanism. अच्छा, यहाँ पे मैं एक new thing, new intermediate I am going to introduce. Okay, mechanism of Riemer-Tiemann reaction. Mechanism of
ध्यान से देखो, वी आर यूजिंग क्लोरोफॉर्म CHCl3, राइट। तो यहाँ पे है अपना OH माइनस, अल्कली NaOH यूज किया मैंने। तो इसमें होता क्या है में, देयर इज अ लॉस ऑफ H2O, H प्लस गया, so that we have a carbon ion, trichlorocarbon ion, okay। this is मतलब ये जो Na प्लस है ना, ये मतलब ये नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब Na प्लस रिएक्ट होगा ना, तो ये Cl माइनस उसके साथ चला गया, so that अभी जो मुझे स्पीशीज मिला है वो है, देखो ध्यान से देखना, अभी जो नेगेटिव चार्ज था वो चला गया। नाउ वी हैव दिस कार्बन which has 6 electrons in the valence shell with lone pair of electron. इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। ये 12th स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट देयर इन अ 12th स्टैंडर्ड, सो मैकेनिज्म नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो कैसे, यहाँ पे तो लोन पेयर दिख रहा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है, बट कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये दो, 1 2 3 4 5 6, मतलब उसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। Now since its octet is incomplete, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। That is what? इलेक्ट्रोफाइल। अंडरस्टूड, इलेक्ट्रोफाइल है ये। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अभी फिनॉक्साइड आयन पे अटैक करेगा, मीडियम अल्कलाइन है, और फिनॉक्साइड आयन मैंने क्या बताया था, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये CCl2 हो गया, ओके, ये अटैक करेगा। तो ये इधर ऐसे अटैक किया इसके ऊपर, so that we have a structure like this way। क्या यहाँ पे O माइनस, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड में कुछ चेंज नहीं, ये डबल बॉन्ड में कुछ चेंज नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये हो जाएगा CCl2, लोन पेयर इसके साथ है इसलिए इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। Now this H प्लस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया नेगेटिव चार्ज की तरफ, और ये जो पाई मतलब ये जो बॉन्ड है ना, CH बॉन्ड का बॉन्ड जो है वो इधर आ गया, इससे मेरा स्ट्रक्चर क्या बना, दिस इज द कंपाउंड वी आर गेटिंग, ये O माइनस, एंड नाउ वी हैव यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हो गया CHCl2। अभी इसके आगे क्योंकि NaOH इज इन एक्सेस है, इसके आगे जो रिएक्शन होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब दिस 2 Cl माइनस, अभी वो मैं नहीं बता रहा मैकेनिज्म उसका, आर रिप्लेस्ड बाय OH माइनस, ओके, समझ में आ रहा है, 2 Cl माइनस आर रिप्लेस्ड बाय OH माइनस। यस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एलिफेटिक कार्बन है ना, वो एलिफेटिक कार्बन पे एसिड रिएक्शन वेरी इजीली होते हैं, तो इसलिए जैसे ही वो CCl2 बन गया यहाँ पे, मैं वो बॉन्ड ऐसे लिख दूं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा। वैसे तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज़ देयर इज अ रेजोनेंस, सो वी हैव व्हाट, CHOH एंड OH। हाँ, ये मैंने यहाँ से शॉर्टकट मारा है, when a 2 OH group bonded with the same carbon atom, that अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग मैकेनिज्म वाइज लेते हैं, नहीं तो फिर कोई तो बोलेगा क्या सर आपने क्या पढ़ा दिया, ऐसे नहीं होता। Yeah, see here now. So in an alkaline medium, OH minus
सो यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस इज रिप्लेस बाय Cl माइनस. सो द अल्टीमेट स्टेट क्या होगा, यहाँ पे आएगा O माइनस, we have a CH, OH and Cl. ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी देखो आगे क्या होगा, देखो. Now the next step is Cl is a better leaving group than OH माइनस. तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, so that ये Cl माइनस यहाँ पे चला गया. So what is the ultimate product HCl, जो NaOH है अल्कलाइन मीडियम, तो उसके साथ रिएक्ट होगा, इसलिए क्या मिलेगा, NaCl and H2O. अगर NaOH लिया तो, otherwise what we are getting, Cl minus and H plus. Right? That H plus is going to react with what, OH minus, right? H2O लिखता हूं मैं, and therefore the product is, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे आएगा O minus benzene ring, then here we have a hydrogen यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, है ना. Now this is further hydrolyzed H3O plus, so acid hydrolysis. So O minus changes to what, OH, और ये देखो क्या मिला, CHO. What is this? इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और सैलिसैल्डिहाइड. सैलिसैल्डिहाइड. प्रीवियस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था सैलिसिलिक एसिड, अभी हम लोगों ने क्या देखा, सैलिसैल्डिहाइड. एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए. स्टेप 1 में हम लोगों ने जनरेट किया इलेक्ट्रोफाइल. दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, H प्लस OH माइनस, ये हो गया अपना कार्बन आयन, Na प्लस, सो कार्बन आयन Cl माइनस गया तो मुझे मिलेगा डाइक्लोरोकार्बीन. कार्बीन इज अ चार्जलेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, चार्जलेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. ओके. उसके बाद डाइक्लोरोकार्बीन अटैक्स वेयर, ऑन phenol. Now it will attack on ortho position. Why? Because that O minus phenoxide में O minus है या OH है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है. सो आइदर वो अटैक ऑर्थो पे करेगा या पैरा पे करेगा. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही वो बॉन्ड बनाएगा, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, सो ये H प्लस, ये जो ना ये अल्फा हाइड्रोजन, ये ले लेगा, सो दैट यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया रिंग में, है ना. सो दैट वी आर गेटिंग CHCl2. उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन. देखो ये वाला जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और ये वाला जो स्टेप है वो है SN रिएक्शन, अगर वो SN2 रिएक्शन है. ओके, तो ये Cl माइनस इज रिप्लेस बाय OH. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन Cl माइनस इज रिप्लेस बाय OH, बट यहाँ पे लोन पेयर ऐसे होगा, सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप, अल्डिहाइडिक कार्बन. समझा ना, ये H प्लस भी चला गया इसके साथ, OH माइनस के साथ. आई एम राइटिंग हियर OH माइनस के साथ, OH माइनस रिएक्ट विद H प्लस गिविंग यू व्हाट, H2O. ये माइनस H2O ही लिखता हूँ यहाँ पे. अभी इसको मैं हाइड्रोलाइज करूंगा, दैट O माइनस इज कन्वर्टेड टू व्हाट, OH. ये है तुम लोग का स्टेप 2. प्लीज राइट डाउन दिस. बोर्ड एग्जाम वाले ये मैकेनिज्म नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है, अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो.
चलो डन हो गया. हेलो गाइस. Done, sir. राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे. जो जो एरो पे लिखा है वो सब एरो पे तुम लोग भी लिखना. ओके. So Reamer Tiemann reaction is followed by dichlorocarbene, new intermediate, carbocation, carbanion और free radical. ये तीन इंटरमीडिएट हम लोगों ने ऑलरेडी देखे थे. ये न्यू इंटरमीडिएट है. व्हाट इज दैट? डाइक्लोरोकार्बीन. ओके. चलो नाउ यहाँ पे अपना फिनॉल खत्म हो गया. कुछ बचा है? जस्ट चेक इट. ऑक्सीडेशन यस्टरडे हम लोगों ने देखा था. ऑक्सीडेशन विद सोडियम डाइक्रोमेट बेंजोक्विनोल मिलता है. रिएक्शन विद जिंक विल गेट अ बेंजीन. देन दिस इज न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट. ओके. एंड these are the uses of phenol. In the preparation of phenol formaldehyde resin, which is used in a plastic bakelite. Bakelite पता है? Bakelite जो अपना स्विच गियर्स AC का कैबिनेट्स वगैरह है, ये सब bakelite है. Okay. In the preparation of phenolphthalein, which is used as an indicator in the preparation of dyes. Dye industry में तो phenol बहुत ही मैटर करता है. In the preparation of picric acid, तुम लोग laboratory में यूज करते हो. Picric acid dry powder जो है वो explosive है. Okay. Many of the nitro compound, by the way, are explosive. In the preparation of Dettol, which is used as an antiseptic, okay, उसमें होता है chloroxylenol. Chloroxylenol जो है, it is prepared from the phenol only. In the preparation of cyclohexanol, which is used as a solvent for rubber and lacquers. In the preparation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, which is used as a selective weed kill. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid as a starting material for the preparation of drugs like aspirin, Celol, etc. एस्पिरिन का प्रिपरेशन मैं बताता हूँ कैसे करते हैं. एस्पिरिन मतलब ये सैलिसिलिक एसिड है अपना. Just now we discussed how to prepare salicylic acid. Salicylic acid is reacted with acetyl chloride CH3COCl in acetic acid CH3COOH, so that the product obtained is, यहाँ पे जो product मिलता है वो रहेगा OCOCH3 and COOH. Plus HCl. This is called as acetyl salicylic acid. Acetyl salicylic acid, which is nothing but aspirin. Okay, aspirin पहले के जमाने में एज अ पेन किलर करके यूज करते थे. Nowadays they are using for to decrease the density. मतलब जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है जिनको, उनके लिए ये यूज करते हैं. राइट डाउन प्लीज. Phenol is also used as a preservative. It is also used as a disinfectant. Disinfectant मतलब उसका dilute solution जो है वो antiseptic होता है. मतलब it has an antiseptic and disinfectant action. Phenol का.
चलो हो गया ये रिएक्शन। हेलो, Yes, sir. ओके। चलो नाउ लेट अस मूव फॉर द एमसीक्यू। एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। कितने क्वेश्चंस किए थे, कुछ याद है? हेलो, यस, कितने क्वेश्चन के ले? Yes, sir. हाउ मेनी क्वेश्चंस वी डिड? कार्तिक, कितना क्वेश्चन हुआ था अपना? कुछ क्या है देखो जरा यार, पेजेस पलटो। ये हुआ था, मतलब ये मैंने बोला था बाद में करेंगे हम लोग। ये किया था क्या 13 क्वेश्चन? सुरीन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 13, what is the major compound obtained by the action of 111 trichloroethane with silver powder? ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। I will give you answer for this. क्या है 111 ट्राइक्लोरोइथेन? ये शायद किया है क्वेश्चन में। CH3 CHCl3 silver powder. It is similar to that of the words reaction. Okay, 6, and we have ये चला गया, so that we have a 6 AgCl, and the product is CH3 C, सर यहाँ पे H नहीं होगा, there should not be H here. So this is the product but2-ine, ये रहेगा। लिख लो रिएक्शन। Next question. In SN2 reaction, the correct order of reactivity of the following. चलो बोलो आंसर, मुझे चैट बॉक्स में आंसर डाल देना। Put your answer in a chat box. करो 16, 7, 14, 15, 16, 17, 5 मिनट। Come on fast.
Yes, come on fast. 14, 15, 16, 17. 5 minutes.
So few of you able to solve? 5 मिनट तो हो गया. अच्छा, इस ये तो सिंपल है क्वेश्चन. You should able to answer this question, right? इसमें आंसर क्या है? In SN2 reactions, the correct order of reactivity for the following compound is, क्या होगा? CH3Cl ज्यादा रहेगा. So CH3Cl must be greater than CS. What is the order first of all? Primary is greater than, secondary is greater than tertiary, na? Right? So CH3Cl, CH3CH2Cl. Yes, correct. So the answer is C. आगे देखो, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ना इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बट वो क्वेश्चन का लेंथ और ऑप्शन देखने के बाद ही लोग उसको पढ़ेंगे ही नहीं. रीड इट केयरफुली. Compound A, C8H9Br, gives a white precipitate when warm with alcoholic AgNO3. तो याद रखना, व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, इसका मतलब वहां पे हैलोजन है, मतलब ब्रोमीन रिप्लेस्ड बाय, मतलब AgBr प्रेसिपिटेट मुझे मिले. ऑक्सीडेशन ऑफ A gives an acid B, C8H6O4. B easily forms anhydride on heating. Identify the compound A. अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, अगर ये Br रिप्लेस हो रहा है तो वो ब्रोमीन डायरेक्टली बेंजीन को अटैच नहीं है. ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is not taking place for aromatic compound under normal condition. वार्म्ड है ना, वार्म, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा. तो अभी अपना आंसर क्या आएगा? अपना आंसर इधर ए रहेगा, बी रहेगा या डी रहेगा. अच्छा, अभी AgNO3 मतलब एक्चुअली वो AgOH रिएक्ट होता है, मतलब Br इज रिप्लेस. तो हम लोग एक एक रिएक्शन करते हैं. अगर ये Br को मैंने रिप्लेस किया, Br को, तो Br इज रिप्लेस, सो दैट हियर वी आर गेटिंग OH. इसका अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया, अभी याद रखना, ये हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो भी अल्काइल ग्रुप बेंजीन को अटैच है ना, ऑन ऑक्सीडेशन उसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. तो इससे जो एसिड मिलेगा ये रहेगा COOH और COOH. इधर भी वही होगा, CH2OH है ये. CH3, इसका अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट इज COOH एंड ये भी होगा COOH. इसका ऑक्सीडेशन करके CH2OH. this is also gives you what? CH3, which on oxidation gives you what? ये होगा COOH and COOH. Is that clear? Now what they are saying कि B forms anhydride on heating. Anhydride मतलब remove water. तो इसमें से ना water easily निकल सकता है because they are close to each other. ये दूर है, ये तो बहुत दूर है, तो अनहाइड्राइड इसका बनेगा. ओके, और ये जो अनहाइड्राइड मिला, अनहाइड्राइड इज लाइक दिस वे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O, O. इसको बोलते हैं थैलिक अनहाइड्राइड. प्लीज राइट डाउन दीज रिएक्शंस. थैलिक अनहाइड्राइड, there is no reaction, heating, no anhydride formation, no anhydride formation. Here also इसको हीट करोगे, no anhydride formation. Is that clear? Please write down these reactions. Write down. इसलिए इसका आंसर आएगा A. कार्तिक तेरा आंसर आया था क्या? इनका C लिखा दूंगा, नहीं रे. Please write down these reactions. Come on fast. We are going very slow.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है। A solution of minus 1 chloro 1 phenyl ethane in toluene racemizes slowly in the presence of small amount of SbCl5 due to formation of। अभी जरा सोचो, रेसमाइजेशन कौन से इसमें होता है? रेसमाइजेशन होता है SN1 रिएक्शन में, और SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकटायन। तो वो क्या कंपाउंड है, रिएजेंट क्या है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं अपने को। सर वो SbCl5 का रिएक्शन हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या पूछा है? रेसमाइजेशन, देन 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। तो इसका मतलब यहाँ पे रेसमाइजेशन किसकी वजह से होगा? कार्बोकटायन की वजह से होगा। इसलिए आंसर क्या होगा? डी। 17, an unknown alcohol is treated with Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary, secondary or tertiary. Which alcohol reacts faster and by what mechanism? Which alcohol react fast? Tertiary. Tertiary alcohol कौन सा mechanism देते हैं? SN1। आंसर सी। ठीक है, चलो अभी आगे करो। 18, 19, 20, 21, 22। ओके, चलो करो।
चलो अभी इसके आंसर्स बता रहा हूं मैं। Iodoform can be prepared from all except, देखो अभी इसमें मैंने आयोडोफॉर्म टेस्ट बताया था। आयोडोफॉर्म टेस्ट किस में होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल in which alpha carbon is directly attached with methyl group, either ये होना चाहिए, और aldehydes और ketones, aldehydes और ketones in which carbonyl carbon को methyl group attach होना चाहिए। आई थिंक ये रिएक्शन मैंने लिख के दिया था तुम लोग को आयोडोफॉर्म टेस्ट का। यस, लिख के दिया था मैंने, आयोडोफॉर्म टेस्ट का रिएक्शन लिख के दिया है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अभी ये देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखो, CH3 CHOH CH3, ये है अल्फा कार्बन, और ये देखो मिथाइल इधर भी है और इधर भी है, तो ये आयोडोफॉर्म देगा। 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोन, सो 2 ब्यूटानोन, ये ब्यूटानोन हो गया। 3 मिथाइल, ये कार्बोनिल कार्बन, ये देखो मिथाइल ग्रुप आ गया। Isobutyl alcohol, what is the structure of isobutyl alcohol? This is the structure of isobutyl alcohol. ये अल्फा कार्बन, now this has no methyl group, इसलिए अपना आंसर क्या आएगा? आंसर मस्ट बी सी। आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ये क्या है? इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन का स्ट्रक्चर ये होता है, सो ये भी देगा। क्लियर? इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। हाँ, जब मैं बोलता हूँ आयोडो, तो तुम लोग को रीड करना है आयोडोफॉर्म टेस्ट। सी, जब तुम लोग प्रैक्टिस करते हो ना ऐसे प्रॉब्लम, जैसे मैं भी करवा, तो आयोडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड, सो गो एंड सी वेयर व्हाट इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है वो देखो, क्या नोट्स में हम लोगों ने लिखा है, क्या टेक्स्ट बुक में लिखा है, या क्या अपना मार्वल के बुक में लिखा है, फाइंड आउट दैट और गूगल इट। Don't Google the question, what is iodoform test? Write down that reaction. See, it will take time, but your concept will start building up. ऐसे 3-4 बार तुम लोगों ने यूज किया कि तुम लोगों के दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। What is DDT among the following? A fertilizer, biodegradable pollutant? It is non-biodegradable pollutant. अभी इसके लिए कुछ लॉजिक नहीं, ये एब्सोल्यूट क्वेश्चन है, मतलब उसका आंसर तुम लोग को पता होना ही चाहिए। अभी इसके ऊपर इतना सारा, मतलब जीके हो, इतना सारा बात हो चुका है, यू शुड एबल टू आंसर इट। नेक्स्ट वन क्या है? विच द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी? SN1 रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो ए जो है ना, वो कंपाउंड कौन सा कार्बोकटायन दे रहा है? ये देखो, जो प्राइमरी है ये ए कार्बोकटायन है, बी से जो कार्बोकटायन बन रहा है वो कौन सा कार्बोकटायन है? ये बी वाला कार्बोकटायन है। अच्छा, ये सेकेंडरी भी है और एट द सेम टाइम ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज भी हो रहा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना इससे, ए से। इसका मतलब बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे बी आर है। अच्छा, ये जब कार्बोकटायन चला जाए, बी आर चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे कार्बोकटायन मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये सेकेंडरी है, बट इसमें सिर्फ क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस प्रिफर्ड और हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए बी इज मोर स्टेबल देन सी, एंड विच इज मोर स्टेबल देन ए। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आएगा? B is greater than C is greater than A. Where is that answer? Answer B. Whenever they say SN1 reaction, मुझे क्या देखना है? Stability of कार्बोकटायन। जहां पे कार्बोकटायन स्टेबल बनेगा वो रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, रिएक्टिव रहेगा। कार्बोकटायन स्टेबल रहेगा तो रिएक्टेंट, मतलब जो सबस्ट्रेट है वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। ओके, next one, which of the following on heating with aqueous KOH complete produces acetaldehyde? तो मैं यहाँ पे सबके रिएक्शन लिख रहा, तुम लोग मेरे साथ लिखना। CH3C double bond OCl when react with KOH,
we have minus KCl and we have CH3C double bond OOH, जिसको हम लोग KOH के साथ वापस रिएक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा CH3COOK, पोटेशियम एसीटेट। उसके बाद CH3CH2Cl when react with KOH, ये तो मुझे पता है क्या होगा, CH3CH2OH plus what, KCl। next is what, CH2Cl, CH2Cl, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। Cl when react with KOH, so what we have, क्या होगा, Cl is replaced by OH, so what will be the product, CH2Cl and CH2Cl। okay, sorry, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे भी आएगा OH, है ना, प्लस 2KCl। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्या है, CH3CHCl2 when react with KOH, same way CH3CH, but now here there are two OH group, or when two OH group attach on the same carbon atom, it is unstable। ये शॉर्टकट है, एक्चुअल मैकेनिज्म ऐसे नहीं है, मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। when two OH group attach on the same carbon atom, so there is a loss of H2O। मैकेनिज्म इसका अलग है, अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, इससे आंसर क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट वन, the organic chloro compound which shows a complete stereochemical inversion during SN2 reaction। तो मुझे ये देखना है SN2 रिएक्शन किस में होगा, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन के लिए ये ऑप्टिकल एक्टिव होना जरूरी है, तो ये नहीं है यहाँ पे, दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इसलिए प्रेफरेबली अगर हम लोग आंसर देंगे तो आंसर ए आएगा, बट इसमें इन्वर्जन नहीं होगा बिकॉज ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। बट SN2 रिएक्शन इसलिए कौन देगा, तो ए देगा। तो यहाँ पे कुछ तो ऑप्शन में गड़बड़ है, जो ले वो, इसलिए वो आंसर में भी ऐसे आ गया, बट आंसर आएगा ए। 23rd, which of the following is the correct order of decreasing SN2 reaction? तो decreasing क्या होगा, R3C सबसे छोटा रहेगा, देन R, तो आंसर आएगा सी, सी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, डिक्रीजिंग, हाँ यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये CH2 होना चाहिए, CH2, so there is a printing mistake, आंसर सी आएगा इसका। ओके, सो आंसर आएगा सी इसमें। यस, एवरीबॉडी डन दिस पार्ट, लिख लिया ये? Yes, sir. चलो अभी ये 3 करो रिएक्शन।
मानसी तो एकच क्वेश्चन आहे ना, टेक्स्ट बुक मधला क्वेश्चन आहे ना तो. हो सर. फॉर दिस क्वेश्चन रिएक्शन ऑफ, इसमें कॉपी कर लेता हूँ. क्या है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24. Reaction of trans 2-phenyl 1-bromocyclopentane on reaction with alcoholic KOH produces. Okay, तो अभी ये क्वेश्चन को यस, तो पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं. क्या है? ट्रांस 2-phenyl 1-bromocyclopentane. तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर तो ये हो गया. ट्रांस 2-phenyl 1-brom मतलब समझो अगर मैंने ये 2-bromo लिखा, राइट, तो 2-phenyl कैसे होगा? 2-phenyl ऐसे होगा, C6H5 होगा. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH क्या होगा? तो ये ट्रांसपोजिशन है. These are what? ट्रांसपोजिशन. तो यहाँ पे